Good afternoon, everyone. Myself, Abhishek Gupta, on behalf of Research Cell, extends a very warm welcome to everyone present here for a short yet enlightening session on the topic secret mantra of self-belief. Secret is within you. This is a very powerful mantra that most of us fails to understand. So, in order to get awareness and power of your own self, Research Cell has organized this webinar. Before moving on, I would like to invite our dearest and very respected Principal Ma'am of HR College, Dr. Pooja Ramchandani Ma'am. For her, every student of HR College has always been the brand ambassador, and which itself brings confidence and motivation in us. Now I request Pooja Ma'am to say a few words of grace. Thank you, dear. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, Yeah. ma'am. So thank you, Abhishek, the chairperson of the research cell, Professor Geeta Nair, the faculty in charge. I can see many students joining in today. And this is, I think, the first event of research cell that I'm joining in for the current year. But I must say there are many events that they have done themselves. And today they are going in for a very unique, different topic which we would not imagine research cell would go into, trying to connect with someone who has achieved success and learning from the experiences of a person who has gone through the success by putting in hard efforts. And I think I must compliment the research cell and Professor Geeta Nair to get such interesting topic to learn a successful life mantra from the person, Mr. Rishabh. I heartily welcome the person, and I must say all the best to the entire research cell student. I hope Rishabh ji has joined. Has he? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, Rishabh ji, and a warm welcome to you to virtual HR college. And I'm sure we will meet soon on the physical platform in HR college. Yes. Really Warm excited to do invite. that. Yes, and I think HR college students have been always into learning mode, and they do not leave opportunities to learn from anyone. And I think thank you, Rishabh ji, for coming here and sharing your success mantra. And I'm sure what you will teach them or will talk to them will have a mind full of experiences that you will share with them. And our kids and our brand ambassadors, as I call them, will take something from you. And I think Rishabh ji, thank you so much for joining us, and keep blessing these children and give them successful mantras that you have achieved success. I want to see each HRite taking those mantras and becoming successful. And we never know that we invite them in the near future to talk to us. So hearty welcome to Rishabh ji, and all the best to entire research cell and brand ambassadors of HR and Dr. Geeta Nair, who's heading and mentoring the club. So welcome once again, Rishabh ji. Looking forward to listening to very beautiful, successful mantras that you are going to give it to these young 18, 19, 20-year-old in HR college. Thanks and infinity for actually providing me this priceless platform. So it is in fact an outstanding opportunity, and thanks and infinity for glorifying me with this glowing gift. No, the pleasure is completely ours, and looking forward to meeting you in person in HR college any day you are coming close to college. Sure, ma'am. Sure. Would love to do that. Over to Abhishek for the further part of the program. Thank you, ma'am, for enlightening words. Now, I would like to introduce you all the backbone of research cell, Dr. Geeta Nair. Thank you, ma'am, for supporting us for this session. And I request you to say a few words and give this session a green signal to take it forward. Thank you, Abhishek. Welcome, Rushabh. Thank you, Principal Pooja Ramchandani.
Indeed, this is the first public platform that we are going live this year with a number of participations, as the principal pointed out, that the students have been interested in doing for this year. They are going to launch a series of programs shortly in the month of March, and you will hear more about it as we go by. So without much ado, I welcome Mr. Rishabh to go ahead with his session. Thank you. Now I request Sukirti to take the Yes. session. Thank you, Principal Ma'am. Thank you, Dr. Nair. But before we begin, I want all the students and our professors and the participants here to know a little bit about our special speaker today. CA Rushabh Kapasi. Mr. Kapasi has almost 100% vision impairment, but still managed to crack all his CA papers and become a chartered accountant. He has featured in many prominent newspapers like the Times of India and the DNA. Along with that, he has also conducted sessions on personality development, stress management. He also takes skill development sessions for all the students of ICAI, and along with that, he mentors them through various levels. He considers visual impairment as a bliss rather than a barrier. On behalf of the whole research cell of HR College, I, Sukiti Chawla, welcome uh, our special and esteemed speaker, Mr. Kapasi. Welcome, sir. And the floor is all yours to take us through the session. Yes, so countless twinkling thank yous from the depth of my soul, from the bottom of my heart, and from the core of my mind for this prestigious opportunity and this platform and your incredible invitation. So I would request you that we conduct a Q&A kind of a thing so that there is a two-way interaction and there is no monotonous speech by me, okay? Yes, sir. Completely. Our team, everybody was so excited to know about you that we have prepared a certain questions to ask you. Beginning with, see, a lot of our college students are pursuing chartered accountancy. So we all have that personal connect to the course, and we wanted to know how was your preparation for the exams? How was your process of preparation for the same? Yes, so दिस क्वेश्चन नॉर्मली सारे लोग मेरे को यही क्वेश्चन पूछते हैं एंड स्टार्ट यहीं से होता है कि सीए प्रिपरेशन से तो आपने स्टडीज कैसे किया. अब आई वुड कंडक्ट द सेशन इन इंग्लिश एक्चुअली, नॉट प्योरली इन इंग्लिश, नॉट प्योरली इन हिंदी. सो बोथ आई होप इज प्रेफरेबल फॉर एचआरआइट्स. यस सर, कंप्लीटली. सो यस, सो बिकॉज वो हिंदी से इमोशनल कनेक्ट फील होगा सब लोगों को. तो मैं आप लोगों को, सब लोगों को, जितने पार्टिसिपेंट्स में सारे लोग हैं, उन सब लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कैन यू क्लोज योर आईज फॉर 5 minutes, ओके, एंड जस्ट इमेजिन व्हाट आई एम टेलिंग. सो जस्ट क्लोज योर आईज, ओके, एंड गो थ्रू दिस जॉयफुल जर्नी. अब सोचो एक ऐसे इंसान की जिंदगी जिसके पास आंखें तो है लेकिन उनमें रोशनी नहीं, जो देख तो पाएगा लेकिन सिर्फ अंधेरा. अगर आपके सामने एक काला पर्दा हो जो कभी हटने ना वाला हो, तो आपको कैसा लगेगा? Feel that frustration, that irritation, that hopelessness, that helplessness, that suffocation, which a school kid will go through. A for apple, B for ball, आप लोगों ने तो कर लिया क्योंकि आप लोग उसको देख पाते थे. लेकिन एक ऐसा बंदा जो इस दुनिया को देख ही नहीं पाया, एंड जिसने इस दुनिया को अगर देखा भी हो तो भी किसी और की नजरों से, जिसे पूरा एजुकेशन विजुअलाइज, इमेजिन और मेमोराइज करना हो, वो कैसे कर पाएगा? सो आप सोचो 11 से लेके सीए फाइनल तक, जिस बंदे के सामने ब्लैक बोर्ड था पर ब्लैक बोर्ड पर लिखी एक भी चीज वो देख नहीं पाया, एंड आपके आसपास के लोग, आपके दोस्त, वो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं जो प्रैक्टिकली हर बंदा डिजर्व करता है, या तो एक वो हैप्पी वाला लाइफ, एंड आपके दिमाग में इमोशनल उथल पुथल मचा हुआ है कि चीजें आपके सामने रखी हुई है पर आपको दिखाई नहीं देती. सो 11 से लेके सीए फाइनल तक बैलेंस शीट मैं अपने नेकेड आइज से देख नहीं पाता था. 11 से लेके सीए फाइनल तक सिर्फ सोचिए कि अगर किसी इंसान को पेन भी ना उठाना हो, वो लिखे भी नहीं कुछ भी, एंड फिर भी उसे सीए का स्टडीज ग्रास्प करना हो. So I could do that only on the basis of my listening skills. So faculty sum पढ़ते थे एंड मैं सम को पूरा मेमोराइज करता था, बैलेंस शीट के सारे अमाउंट्स, एडजस्टमेंट के सारे फिगर्स. अब आप सोचो आपकी आंखें बंद है, आपके सामने अमालगमेशन का एक सम चल रहा है. आई होप यहाँ पे
बच्चे पढ़ते भी होंगे थोड़ा थोड़ा. सो अमालगमेशन तो सब लोग फेमिलियर होंगे. अमालगमेशन नहीं तो फाइनल अकाउंट्स ले लो. अब सोचो, जर्नल एंट्रीज पास करना है ओरली, हर जर्नल एंट्री का डबल एंट्री इफेक्ट लेजर अकाउंट में देना है ओरली, हर लेजर का कास्टिंग पोस्टिंग कैरी फॉरवर्ड भी करना है ओरली, और बैलेंस शीट भी टैली करनी है ओरली. एंड ऐसा सिर्फ एक सम के लिए नहीं, फॉर मल्टीपल सम्स, for multiple subjects, for multiple chapters, and that too for the whole course of CA. So this is how I completed my CA journey. I hope now you can open the eyes and answer me. How did you feel after listening to this? So to say for personally, it felt like I was in a total different world, only to depend on my hearing skills to understand what you're saying feels a bit different, and we really salute you for the commendability that you cleared all your exams only doing it through orally. That was completely great. And yeah, anybody else would like to tell their experience? Abhishek, what did you feel? Yeah, sure. So as exactly, I attended the whole session where I heard all this, and it was completely a different, like, situation in front of us. We can't imagine, even with our naked eyes we do lots of errors and mistakes. So what we can do just by only on our listening skills. वहां Yeah, पे तो हैंकरचीफ बंधवाया था उनको उस सेशन में. तो अभी मैंने फिलहाल वो एक्सपेरिमेंट नहीं करवाया, पर वहां पे तो उन्होंने मेरा पूरा का पूरा ट्रैवलिंग से लेके स्टडीज तक का सारा जर्नी हैंकरचीफ के yes बेसिस sir. पे सुना था. I mean, that would be a completely different experience, but this was also great for us. Moving forward, sir, we have another question is, did Braille play? What about Braille, the language Braille? What was it a part of your journey, or if not, then why? सो मेरा करंट आई कंडीशन पहले तो आप जान लीजिए. सो बेसिकली मेरा राइट आई छोटा है एज कम्पेयर टू माई लेफ्ट आई. सो दिस राइट आई में ऑपरेशन हो चुका है. सो अपने आंखों में कैसा होता है, कॉर्निया नाम का एक डार्क ब्लैक पोर्शन होता है जहां से लाइट के रेज आर पार होते हैं. सो ये कॉर्निया से रेज पास होकर रेटिना तक जाते हैं, रेटिना से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ब्रेन तक जाते हैं, एंड यू कैन सी व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ यू. लेकिन माय कॉर्निया हैपेंस टू बी ओपेक. सो माय करंट आई कंडीशन इज राइट आई में 0% विजन एंड लेफ्ट आई में ऑलमोस्ट 4 to 5% विजन. सो ये नेग्लिजिबल विजन पहले इतना नेग्लिजिबल नहीं हुआ करता था. पहले ये थोड़ा ज्यादा हुआ करता था. इट डिटीरियोरेटेड ड्यूरिंग माय स्कूल डेज. सो इनिशियली क्या होता था, मेरे मेरी माताश्री और मेरे पिताश्री, ये दोनों ऐसे महान इंसान हैं. जूनियर से लेके ऑलमोस्ट 5th स्टैंडर्ड तक ये लोग क्या करते थे, पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक्स लिख के निकाला करते थे विद डार्क कलर्ड स्केच पेन एंड इन बिग हैंडराइटिंग. ओके, सो टू डू इट फॉर अ किड, ओके, इट इज वेरी डिफिकल्ट. अब आप सोचो कि आपका खुद का स्टडीज नहीं है, आपके किड का है. ओके, लेकिन आपको कितना टाइम, एनर्जी और एफर्ट्स इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसके लिए, एंड कितने सेल्फलेस सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे. सो पहले इनिशियली एकदम लिटरली आंखों को इतना चिपका के आई यूज टू बेसिकली बी एबल टू रीड दैट स्टफ. फिर धीरे धीरे सिलेबस बड़ा होने लगा, एंड फिर वी स्टार्टेड एनलार्जिंग आवर टेक्स्ट बुक. सो बेसिकली M4 साइज के पेपर पे अगर आप बुक एनलार्ज कराओगे तो इट विल बी अ वेरी मैग्निफाइड वर्जन ऑफ व्हाट वी रीड. ओके, सो ऐसा हुआ कि नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड नाम का एक एनजीओ था, जिन्होंने हमको एक हम्बल हेल्पिंग हैंड ऑफ होप लेंड किया था. एंड उनका ये मानना था कि जिस रिसोर्स को इस्तेमाल ना किया जाए वो डीके जल्दी होता है. तो उनका ये मानना था कि ब्रेल से आप अपने आंखों को टोटली ब्लॉक ना कर दो, उसके बदले आप नॉर्मल जो टेक्स्ट है वो एटलीस्ट पढ़ के थोड़ा थोड़ा ही सही आंखों को एटलीस्ट एक्टिव रखो, ताकि उसमें ब्लड सर्कुलेशन भी रहे. सो बहुत सारे लोग सरप्राइज हो जाते हैं ये सुन के कि आई वाज नेवर कोच्ड इन ब्रेल. ओके, एंड it is something very unique when it comes to visually challenged कि आपको ब्रेल का ट्रेनिंग आइदर तो मिला ही नहीं है, या तो आपका ब्रेल का ट्रेनिंग काफी वीक है, बिकॉज नॉर्मली विजुअली चैलेंज्ड को आइडेंटिफाई ही ब्रेल से किया जाता है. सो सिंस आई वाज नॉट अ टोटली ब्लाइंड, तो ब्रेल का बेसिक ट्रेनिंग दिया गया था मेरे को, पर वो बेसिक ट्रेनिंग ही था ऐसा करके, एंड वो ज्यादा एजुकेशन में काम नहीं है. सो अगर आप देखोगे ना हायर एजुकेशन के लिए ज्यादा करके ब्रेल में बुक्स है ही नहीं. व्हेन इट कम्स टू सीए, व्हेन इट कम्स टू कॉलेजेस, तो कॉलेजेस के लिए भी अभी अभी अवेयरनेस क्रिएट होने के कारण ब्रेल में बुक्स बन रहे हैं. बट व्हेन इट कम्स टू सीए लेवल, सो यू डू नॉट हैव एनी ब्रेल बुक्स मेड टिल नाउ. सो दैट इज व्हाई उतना तो आइडिया आ गया था हमको कि भाई कितना भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, हमको अपने कानों पे ही विश्वास करना पड़ेगा रादर देन अपने हाथों पर. मतलब ब्रेल सीखने के बदले रादर कानों को ही ज्यादा ट्रेन करो, ऐसा हमारा मंत्र हो गया था.
So this is how ब्रेल का रोल था मेरे लाइफ में. Thank you for sharing that, sir. Really felt good, like how your parents supported you throughout your journey and the helping hand of the NGO. And you really said the great thing. Focus on a skill that you have and enlarge it rather than focusing on learning a new one. So thank you for sharing that. Moving that, as we for our session, we wanted to learn your success mantras, your secret success mantras. What is your mantra slash philosophy in life? So to answer this question, ये भी एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, पर एक्चुअली ये क्वेश्चन मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, बिकॉज क्या पता है यहाँ पे आई गिव दैट मैसेज, मतलब आई बिकम दैट मैसेंजर फॉर द सोसाइटी. बट टू शेयर दैट, सबसे पहले तो ना मेरे को आपका जो ये टॉपिक था सीक्रेट मंत्रा ऑफ सेल्फ बिलीफ, ये मैंने अभिषेक से शेयर किया था कि I just loved this concept. मतलब this is the most unique title which you can give to this session. So आपके टाइटल के अंदर ही पहला रहस्य तो छुपा हुआ है. नॉर्मली वी गो ऑन अ सेल्फ डाउट, लेकिन मेरे केस में सेल्फ बिलीफ आपको दिखेगा. आपको खुद के ऊपर ही भरोसा करना है. नेवर बिकम अ बैरियर टू योरसेल्फ. यू कैन हैव थाउजेंड्स ऑफ एक्सक्यूजेस, बट यू शुड हैव वन स्ट्रॉन्ग वैलिड रीजन टू कंटिन्यू. ओके, सो दिस इज माय फर्स्ट मंत्र. दूसरा मैं सबके साथ ये शेयर करना चाहूंगा कि डायमंड नीड्स फ्रिक्शन टू बी पॉलिश्ड एंड गोल्ड नीड्स फायर टू बी प्योरिफाइड. सो जब एडवर्स सिचुएशंस आए, जब टफ टाइम्स आए आपके जिंदगी में, तब उनको उस फ्रिक्शन, उस फायर की तरह मानना जो आपके अंदर के डायमंड और गोल्ड को बाहर निकालेंगे. सो यू कैन चैलेंज टफ टाइम्स बाय सेइंग, ए बुरे वक्त जरा अदब से पेश आ, ए बुरे वक्त जरा अदब से पेश आ, क्योंकि वक्त नहीं लगता वक्त बदलने पे. एंड ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर कि गोल्ड को अगर एक ऑर्नामेंट में ट्रांसफॉर्म होना हो तो उसको बड़े ही पेनफुल प्योरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा. उसको हथौड़ी से मार भी खाना पड़ेगा, उसको हेवी टेम्परेचर्स पे हीट भी होना पड़ेगा. पर अगर वो ये कर गया तो वो ऑर्नामेंट बन जाएगा जो दुनिया की नजरों में चमकता है. सो नो गेन्स विदाउट पेन्स. सो आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन टू एवरीबडी हियर. डू यू एक्सेप्ट और रिजेक्ट योर प्रॉब्लम्स? क्या करते हो? Usually, normally, what do we ignore them? Okay, we ignore them. Okay, anything else? और कुछ करते हैं प्रॉब्लम्स के साथ हम? अच्छा, तुम्हारे दिमाग में कभी ऐसा थोड़ा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मेरे साथी काय को हुआ, दैट वाई मी एटीट्यूड, ये क्वेश्चन मार्क बन के कभी आया तुम्हारे सामने? Yes, sir. सो अब तुम सोचो, मेरे केस में अगर मैं ब्लाइंडनेस को एक्सेप्ट नहीं करता, अगर मैं कॉन्स्टेंटली उसको रिजेक्ट करूँ कि नहीं 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 भाई मैं तो ब्लाइंड हूं ही नहीं, तो व्हाट विल हैपन? फिजिकली लिमिटेशंस है और मेंटली मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, मतलब टग ऑफ वॉर होगा. ओके, सो इफ यू रिजेक्ट योर इशू, देन आपका स्टेट ऑफ माइंड डिस्टर्ब रहेगा और आप सोल्यूशन नहीं सोच पाओगे. अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपका दिमाग हो जाएगा स्टेबल और आप उसका सोल्यूशन सोच पाओगे. मोस्ट ऑफ अस गो इनटू दिस व्हाई मी एटीट्यूड व्हिच मेक्स अस प्रॉब्लम ओरिएंटेड. आई वेंट इनटू व्हाट नेक्स्ट एटीट्यूड व्हिच मेड मी सोल्यूशन ओरिएंटेड. सो मैं तुमको यही बोलना चाहूंगा, इफ एवरी ब्लैक क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइन, व्हाई नॉट फोकस ऑन दैट सिल्वर लाइन? If every tunnel is going to have light at its end, why not focus on that light? And after the darkest hour of night ही sunrise होता है. और तुमको पता ही होगा, the best ever photographs are manufactured in a dark room with negatives. So जब भी tough times आए, मैं तो हमेशा CA स्टूडेंट्स को एक चीज बोलता हूँ, CA is not a tough course, it is a course for tough people. And I am that tough, okay? And जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ऐसा कहता ना. अच्छा, आप लोग में से कोई ट्रेकिंग पे गया है? Has anybody visited Yes, trekking? sir. Yes, sir. So trekking में सपोज 15-20 लोगों का ग्रुप जाएगा, तो मुझे बताइए सबका एक्सपीरियंस सेम होगा या डिफरेंट होगा? Different. तो why is the experience different even if the path is the same? सब लोगों के लिए रास्ता सेम है पर फिर भी सबका एक्सपीरियंस डिफरेंट, ऐसा क्यों? सो नॉर्मली लोग स्पीचलेस हो जाते हैं ऐसा कुछ सुन के. सो मैं ही उसका आंसर बताता हूँ तुमको कि सबका परसेप्शन उसी पाथ को लेकर अलग अलग होता है. सो सोच बदलो सितारे बदलेंगे, नजरिया बदलो नजारे बदलेंगे. सोच बदलो सितारे बदलेंगे, नजरिया बदलो नजारे बदलेंगे. कश्तियां बदलने से कुछ नहीं होगा यारो, दिशाएं बदलो किनारे बदलेंगे. सो सवाल नजर का नहीं नजरिए का होता है. नजरिया बदलो नजारे बदलेंगे. एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू टेल, लॉस ऑफ साइट इज नॉट लॉस ऑफ विजन. विजन रिसाइड्स इन माय माइंड. दृष्टि नहीं तो क्या, दृष्टिकोण तो है ना. And this is only my secret mantra of success.
Oh my God. Thank you so much for sharing that with us, sir. I guess a lot of us are here, all are ears to your conversation. And the one thing that I personally like is when you're telling your experience or your mantras, you are using all these shairis, great sayings, phrases that makes us connect more to what you are saying. So that we really love that you're bringing literature and fun to this session. Thank you so much for sharing. Uh, this is what your mantra is, but to go, like, any three steps for our students to follow, like students, especially student oriented tips, so that we always keep in mind while going towards our next goal. सो सबसे पहले तो तीन आपने जैसे स्टेप्स कहा, तो मैं उसको मॉडिफाई करके आई वुड लाइक टू गिव 3 मैसेजेस बेसिकली, जैसे आपने टिप्स कहा. सो फर्स्ट वुड बी ड्रीम बिग, मतलब बड़ा सोचोगे तो बड़ा बनोगे. किसने सोचा था कि एक विजुअली चैलेंज्ड जिसके पास सिर्फ 5% विजन है वो कभी सीए भी होगा. लेकिन नथिंग इज इम्पॉसिबल बिकॉज इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल. ये बुक्स में पढ़ा तो बहुत बार होगा, लेकिन आई एम श्योर कि बुकिश प्रोवर्ब्स बहुत हर्ट करते हैं लोगों को. हाँ, ये सब तो किताबी बातें हैं, लेकिन आज मेरे लाइफ में तुमको सच में इम्प्लीमेंट होती हुई दिख रही हो. सो टिप नंबर 1 इज ड्रीम बिग. टिप नंबर 2 आई वुड लाइक टू शेयर इज कि आजकल कैसा है, नेगेटिविटी का कोरोना तो बहुत तेजी से फैल रहा है. आप लोगों से एक चीज पूछूंगा, क्या लगता है एक इंसान डिपेंडेंट होता है या इंडिपेंडेंट होता है? क्या लगता है आपको? आर यू टोटली इंडिपेंडेंट और आर यू डिपेंडेंट? Dependent, Dependent. still a little dependent. सो हम अपनी सांसें लेने के लिए भी ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट है, ये अपने को कोरोना ने दिखा दिया है. सो आपको पता है अभी यूथ, मतलब वी नीड द पावर ऑफ यूथ. मतलब टिप नंबर 2 रिलेट्स टू दिस. अपने नमो साहब ने काफी बार मित्रों मित्रों करके एक चीज कहा है कि भाई आई वांट टू इन्वेस्ट इन यूथ. लेकिन यूथ फेल्स टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हमें सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड नहीं रहना है, हमें एक हम्पल हेल्पिंग हैंड ऑफ होप भी लेंड करना है. जैसे अगर आप देखोगे तो मेरे लाइफ में एक तगड़ा सपोर्ट सिस्टम था जिसकी वजह से आई फ्लरिश्ड. लेकिन आजकल मैं जब देखता हूँ तो दोस्ती आ रही, हमारे टाइम का फ्रेंडशिप एंड योर टाइम का फ्रेंडशिप, मतलब वो फेयर वेदर फ्रेंड्स जैसे होता है, मतलब वैसा टाइप्स का हो गया. तो आपको टिप नंबर 2 मैं आपको यही दूंगा, जहां पे भी आपको लगे खुद के शेल से बाहर निकलना, एटलीस्ट किसी एक इंसान की हेल्प करना. क्या पता आपका लिया हुआ छोटा सा स्टेप सामने वाले की लाइफ में बहुत मैग्निफिसेंट इम्पैक्ट रखता हो. ओके एंड अगर आपने जय हो देखा हो, जय हो में एक ही फिलोसॉफी था, भाई थैंक यू ना बोल, आगे 3 लोगों की मदद कर दे. तो आप सिर्फ इतना कमिट करो मेरे को कि आप किसी एक की मदद करोगे. कैन यू हेल्प मी टू स्प्रेड दिस हेल्प का कोरोना इन आवर सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी? कैन यूथ हेल्प मी टू स्प्रेड दिस? Sure, sir. Yes, sir. एंड टिप नंबर 3, देखो मैं तुमको सुपरफिशियल मोटिवेशन नहीं दूंगा. आजकल ना कैसा है यूट्यूब या तो उस पे सब अच्छा था, सब गुड़ी गुड़ी था, सब बटरी बटरी था, सब बेड ऑफ रोजेस था, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा. देखो सबके माइंड में होता है कॉमन फीलिंग, डर. मेरे दिमाग में भी था. लेकिन डर से तुम जितना भागोगे वो और भगाएगा, जितना झुकोगे वो और तुमको और झुकाएगा, जितना मर मर के जियोगे वो तुमको और मारेगा. ओके तुम सोचो, आज मैं टेक्नोलॉजी ऑपरेट कर रहा हूँ, आज मैं जूम के थ्रू ज्वाइंड इन हूँ. 1 साल पहले माना करता था ये तो अपने से नहीं हो पाएगा भैया, ओके दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी. कुछ साल पहले ट्रैवलिंग के बारे में ही ऐसा ही मानना करता था कि भाई एक विजुअली चैलेंज जालिम बेरहम दुनिया को फेस कैसे करता था, करेगा. लेकिन आई नेवर बिकेम अ बैरियर टू माई सेल्फ. तो तुमको ये बोलूंगा कि डर के आगे जीत है, और फियर का 2 ही फुल फॉर्म्स याद रखना, फेस एवरी टाइम एंड राइज, दूसरा फॉरगेट एवरीथिंग एंड राइज. और ये 2 अगर तुमने इंप्लीमेंट कर लिया तो इन शॉर्ट तुम अपने सारे शेल में से बाहर आ जाओगे. अगर तुमने ऑब्जर्व किया हो, शेर अगर किसी जेब्रा के पीछे पड़े तो वो भागता है, अगर हाथी किसी टॉर्टोइस की तरफ आगे बढ़े तो टॉर्टोइस अपने शेल में छिप जाता है. अगर डर नाम का हाथी आए तो हम भी अपने शेल में छुप जाते हैं, अगर डर नाम का शेर आए तो हम भी जेब्रा की तरफ भागते हैं. लेकिन डर की आंखों में आंखें डाल के देखना पड़ेगा. ओके फेस द फियर इज द फर्स्ट स्टेप. नेक्स्ट फाइट द फियर. तुमने देखा है बिल्ली को अगर संकट का एहसास हो तो बिल्ली एकदम खतरनाक खूंखार मोड में चली जाती है. सो फेस द फियर, फाइट द फियर एंड फ्री योरसेल्फ फ्रॉम द फियर. तो ये एक चीज हमेशा याद रखना कि भाई अगर तुम डरे तो तुम खुद के ही इसमें कैद हो जाओगे, और खुद के ही लूप में कैद हो जाओगे, और खुद के पोटेंशियल को रियलाइज नहीं करोगे. सो इन शॉर्ट आई वुड लाइक टू टेल यू,
every splendid soul has a priceless potential, just unlock your potential. And मैं यूथ से ये अपील करूंगा कि भाई वो कैजुअल एटीट्यूड या टेकन फॉर ग्रांटेड एटीट्यूड को त्याग के अपने पोटेंशियल को रियलाइज करो और ड्रीम बिग करके आगे बढ़ते रहो. Thank you so much, sir. I guess I'm keeping on my tips, like what all I have to take back from this session, especially the new definition of fear: forget everything and rise above. Thank you so much, or face everything and rise above. Here from our team, from our session, Rishita had a question to ask you, sir. Rishita, you can go ahead. हेलो सर, बहुत अच्छा लगा किसी को मतलब इतने विल पावर वाले पर्सन से बात करना फेस टू फेस, बहुत अच्छा लगा। मेरे को ये पूछना है कि आपने सीक्रेट और जो ऐसी सब बुक्स होती है फिलोसोफर्स की वो रीड की है क्या? सो आपको पता है लाइफ सबसे बड़ा बुक होता है. अगर लाइफ नाम के बुक को डिकोड कर लो तो आपको किसी भी फिलोसोफर की बुक का जरूरत नहीं पड़ेगा. एंड एग्जैक्टली मेरा इमोशनल स्ट्रगल अपने आप में, एक्सपीरियंस अपने आप में एक ऐसा बड़ा किताब होता है जो किसी भी फिलोसोफर से बड़ा आपको लाइफ लेसन दे सकता है. और इसके वजह से आई वुड लाइक टू टेल यू, अब तक I have never read a philosophical book. हाँ, हालांकि I have deeply been connected with spirituality. मतलब मैं पहले से माइथोलॉजी का, स्पिरिचुअलिटी का मैं बहुत बड़ा फैन था. सर जैसे ना B.R. चोपड़ा के महाभारत या रामानंद सागर का रामायण, वो तुम लोग बोलोगे सर क्या ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग लेके आ गए सर आप, लेकिन ये ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग नहीं, आज ये विल पावर दिया है. एंड यही मेरा सीक्रेट मंत्र मैं तुमको बताना चाहूंगा. फिलोसोफर का बुक थियोरेटिकली कभी नहीं पढ़ा, लेकिन स्पिरिचुअलिटी आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बना देता है. सो आई हैव बीन डीपली कनेक्टेड टू स्पिरिचुअलिटी एंड आई फॉलो जैन फिलोसॉफी बेसिकली. सो आई प्रैक्टिस जैन रिलीजन. तो अगर आपको पता हो या ना भी पता हो तो मैं आपको बता दूं, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ 24 तीर्थंकर्स इन जैनिज्म. सो बेसिकली इनके लाइफ स्केचेस जो बोलता ना मॉडल होते हैं और उनको ही फॉलो करके ऐसे बोलता ना कि महापुरुषों के फुटस्टेप्स पे अपने को चलना चाहिए. सो कभी भी थियोरेटिकल बुक पढ़ने का मौका नहीं आया, पर मेरा अपब्रिंगिंग, मेरा वैल्यू सिस्टम, मेरे दादी के वो मॉरल वैल्यूज, मेरे पेरेंट्स का वो अपब्रिंगिंग, वही मेरे लिए सबसे बड़ा किताब बना जो पढ़ के मैं आज तक यहाँ पे पहुंचा. सर बहुत अच्छा लगा सुन के कि आप जैन फिलोसफी फॉलो करते हो. आई एम ऑल्सो फॉलोइंग जैनिज्म. और मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि जैनिज्म में भी और बहुत दूसरे रिलीजन्स में भी ये कॉमन बिलीफ है कि मेडिटेशन करना चाहिए. जैनिज्म में ध्यान बोलते हैं. तो Yes. आप भी करते होगे, आपको सुन के लग रहा है. सो मैंने तो जो ध्यान करवाया था वो अभिषेक साहब से पूछिए. आप अभिषेक साहब आपको जरा बताएंगे ध्यान कैसा होता है. Yes, it's very सो impactful. मतलब मैं ध्यान करता भी हूँ, लेकिन मतलब आई डू नॉट बिलीव इन दैट फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ ध्यान कि अगर एक जगह पे बैठेंगे तो ही ध्यान होता है, ऐसा नहीं है. आप अगर मानोगे ना तो जैनिज्म में भी और बाकी सारे रिलीजन्स में ये बिलीव है कि ध्यान इज अ लाइफस्टाइल, नॉट अ 5 मिनट प्रोसेस. ओके, मतलब बेसिकली मेडिटेशन इज सपोज टू बी कि आप कितने फोकस हो, आप कितने कॉन्सेंट्रेटेड हो, कितने सेल्फ अवेयर हो, इसको ध्यान बोलेंगे. और वो मैं हमेशा प्रैक्टिस करना चाहता हूँ. और मैं यूथ को ये भी बोलना चाहूंगा कि मेडिटेशन तुमने सुना बहुत बार रहेगा, करना चाहिए, लेकिन कभी किया नहीं होगा. इफ यू वांट, I have a detailed 30-minute recording of meditation. Okay, I can share that video and audio recording with you also, so that everybody starts practicing it on a daily basis. यस सर, प्लीज डू शेयर. थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. Yes, बहुत अच्छा लगा आपसे आपके क्यूरियस सवाल जान के, बिकॉज कैसे आई लव दैट क्यूरियस यूथ. मतलब आपके क्यूरियोसिटी के क्वालिटी को बरकरार रखना. हाँ सर, श्योर. Thank you, Rishita. And Vishakha also wanted to ask a question to sir. Vishakha, go ahead. गुड आफ्टरनून सर. एक्चुअली मेरा सवाल आपसे ये था कि लाइक मैं भी अपने आप को काफ़ी कॉन्फिडेंट रखने की कोशिश करती हूँ, काफ़ी खुद पे मतलब ऐसे रखती हूँ कि मैं एकदम सही हूँ, मैं कर सकती हूँ ऐसा. पर कई बार ऐसे दिन आ जाते हैं जब खुद पे ही मैं बिलीव नहीं कर पाती हूँ, सेल्फ डाउट हो जाता है. तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कभी कि कुछ दिन आप खुद पे डाउट कर जाते थे, सेल्फ डाउट वाले स्टेट पर चले आते थे, तो फिर आप उसको ओवरकम कैसे करते थे? सो सेल्फ डाउट इतने लोएस्ट लेवल तक तो नहीं गया मैं, पर हाँ कभी कभी ऐसा
हेजिटेशन, रिलक्टेंस, इनकन्वीनियंसेस, डिफिकल्टीज या डर एटसेट्रा, ये सारे फीलिंग्स ने मेरे को भी घेरा। पर तभी आई यूज्ड टू ऑलवेज रिमेंबर ऑल माय रोल मॉडल्स। मतलब आप सोचो, ग्रेट गॉड, जीनियस गुरुज, मेरे फैंटाबुलस फ्रेंड्स, मेरे प्राइसलेस पेरेंट्स, वो वंडरफुल राइटर्स जिन्होंने मेरा पेपर लिखा, वो रीडर्स जो बेसिकली मुझे आके पढ़ के सुनाते थे, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड नाम का वो एनजीओ, अगर ये सारे लोग मेरे लिए इतना कुछ कर सकते हैं तो मैं खुद के लिए क्यों एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकता। और ये चीज मेरे को वापस उठ के खड़ा होने पे एकदम इंस्पायर कर देता था। आपको पता है, अपने अगर ड्रामा परफॉर्म हो रहा हो तो ड्रामा में हम ना फ्रंट स्टेज परफॉर्मिंग कैरेक्टर्स को बहुत वैल्यू करते हैं कि ओहो मस्त परफॉर्मेंस, लेकिन ना पीछे वाले साउंड दादा, लाइट दादा को तो सब भूल ही जाते हैं, पर उनके कोऑपरेशन के बिना कुछ चलेगा नहीं आपका। ओके, वो स्किट आपका अच्छे से चलेगा नहीं। तो मैं हमेशा अपने उन अमेजिंग एंजल्स को जिन्होंने मुझे जीरो से हीरो बनाया, उनको मैं याद करता था और वापस आई यूज्ड टू गेट दैट करेज। और आपको पता है, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, बिकॉज एवरीबडी एंड एनीबडी फियर्स फॉर सम और द अदर थिंग। करेज इज द कॉन्क्वेस्ट ऑफ फियर। सो जब भी ऐसा लो फील करता था या मोरल डाउन हो जाता था, तो एट दैट टाइम मैं अपने सपोर्ट सिस्टम की तरफ देखता था। थैंक यू सो मच सर। Thank you so much, sir. And I guess after from learning from this answer, we got to know whatever main character you are in your own life, आपकी life कभी fulfill नहीं है with all the side characters. You have all your support systems. और आपको एक चीज और बोलना चाहूंगा, जैसे विशाखा जी ने अभी क्वेश्चन पूछा। अच्छा विशाखा जी, आई वुड लाइक टू आस्क यू टू अनम्यूट प्लीज। यस सर। सो आपको आपके नाम का मतलब पता है? विशाखा नहीं। सो विशाखा नक्षत्र होता है बेसिकली, जिससे वैशाख महीना स्टार्ट होता है। ओके, सो विशाखा आपको पता है, नक्षत्र हो, स्टार्स हो या सन हो, सबको अगर दुनिया को रोशन करना हो तो पहले उसको जलना ही पड़ता है। एंड योर नेम विल इटसेल्फ बिकम योर इंस्पिरेशन, यू आर मेंट टू शाइन इन द स्काई। अपने यहाँ पे नक्षत्रों का बहुत इंपॉर्टेंस है। आप देखना कभी नक्षत्र, कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्टार्स, दे आर जस्ट मेंट टू शाइन इन द स्काई। Okay, thank you sir. Thank you for making me realize that. I didn't knew that. Yes. Thank you so Rishabh ji, much. I have a question. Yes. Yes. ऋषभ जी, आपके बातों से लगता है आपने बहुत किताबें पढ़ी हैं। And reading is an important aspect of life which these youngsters are losing. क्योंकि इनके पास रीडिंग के लिए व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, नेटफ्लिक्स है, उसके अलावा इनके पास रीडिंग के लिए टाइम नहीं है। So you have to tell them how important is reading and how it allows you to speak so well whenever you meet people. So which books you read and will recommend these young budding future readers? So मैंने as such कभी भी कोई थियोरेटिकल सेल्फ हेल्प बुक या वैसे कभी कुछ पढ़ा नहीं है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही शेयर किया था कि आई हैव ऑलवेज बीन डीपली कनेक्टेड विद स्पिरिचुअलिटी, सो आई हैव ऑलवेज बीन गोइंग थ्रू द लाइफ स्केचेस ऑफ अपने यहाँ पे। जैसे नॉर्मली आजकल यूथ जैसे मानता है कि जैसे भगवान की बातें मत कीजिए आप, ऐसा करके भगवान मतलब रिलीजियस ऐसा करके। सो आई ऑलवेज कंसिडर अपने यहाँ पे बहुत सारे रोल मॉडल्स है स्पिरिचुअली। अगर आप देखोगे बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स है जिनको आप फॉलो कर सकते हो ऐसा करके, एंड उनके अंदर सारे लाइफ लर्निंग लेसन्स मिल जाते हैं। सो आई वुड लेकिन रिक्वेस्ट यूथ की डिजिटल और सोशल मीडिया इज जस्ट एन ऑप्शन, लेकिन उसके ऊपर ही आपका पूरा फोकस मत डाल दो ऐसा करके। एंड आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर से नॉलेज इज पावर। सो बेसिकली रीडिंग आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सो आपको सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेक्टेशंस नहीं मेरा। कैन यू टेक आउट ओनली 10 minutes टू रीड एटलीस्ट 1 page ऑफ अ बुक? इतना होगा तुमसे? आई एम आस्किंग दिस टू एवरीबडी। तो ओके, you can read। और मैं हमेशा ना, जब when it comes to reading, I would always suggest biographies, autobiographies, and I would always suggest life sketches of those role models जिन्होंने बहुत कुछ गो थ्रू किया है लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग एक बड़े मकाम पे पहुंचे हैं। वैसे टाइप के बुक्स आप हमेशा प्रिफर कीजिए। फिक्शन वर्ल्ड वाला बुक्स प्रिफर मत कीजिए, उसमें लर्निंग से ज्यादा सिर्फ एंटरटेनमेंट होगा। आई वुड फोकस मोर ऑन इंफोटेनमेंट रादर देन एंटरटेनमेंट। ओके, Thank you so much, sir. I guess all of us, all the youth and the students here will take this message back,
read every day and focus on all the important things in life. Thank you so much. Thank you, Pooja ma'am, for bringing such an important question up. Yes, Sahil, over to you to ask your question. So hello, sir. I wanted to ask you, Yes. like, when you decided to become a CA, like, when you set a goal that no, I want to be a CA now. Was So there any role again, model or like self? a very interesting question which I get very normally कि सर सीए ही क्यों चूज किया, आपको दूसरा और कुछ मिला नहीं? सर सीए ही, वाई सीए ओनली? सो आई वाज अ डाई हार्ड फैन ऑफ साइंस ड्यूरिंग माय स्कूल डेज. एंड साइंस का फैन मतलब कैसे, आपको पता ही होगा, दो ही चीज होता है, सिर्फ डॉक्टर या तो इंजीनियर. चाहे आपको पता ना हो कि उसमें करना क्या होता है, लेकिन 8, 9, 10 अगर कोई मेरे पास आप पूछता तो आई वुड ऑलवेज टेल कि आइदर डॉक्टर या तो इंजीनियर. वो रटा रटाया हुआ आंसर होता ना, लेकिन आपको पता ही होगा चतुर बनेंगे तो चमत्कार का बलात्कार होना ही है. तो थेरोटिकली तो मतलब मैं ऐसे ही जस्ट आई वांटेड टू गो इन साइंस वैसे, हालांकि अंधेरे में तीर मार रहा था. अब 10th स्टैंडर्ड का वेकेशन, that predominant period when we have to discuss and decide about our careers. So आजकल तो बहुत जल्दी लोगों का 5th 6th स्टैंडर्ड से डिसाइड हो जाता है. तुम्हारे जनरेशन को मैं काफी इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल मानूंगा, पर हम लोग के टाइम पे तो हमको इतना बुद्धि भी नहीं था कि स्कूल डेज में सब डिसाइड हो जाए. अब 10th के वेकेशन में ब्रेन स्टॉर्मिंग स्टार्ट किया पेरेंट्स के साथ. अब वो टाइम पे एक नया नया ट्रेंड चला था करियर काउंसलर्स का, जो आजकल बहुत पॉपुलर है, पर वो टाइम पे एकदम जैसे बोलते हैं नया नवेला वो आया था. तो क्योंकि मेरा बहुत स्पेशल वाला केस था, तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि एक बार चलो कुछ थर्ड पार्टी का ओपिनियन भी लेते हैं, शायद कोई प्रोफेशनली आपको हेल्प कर दे. अब मैंने वहां पे जाके अपना ड्रीम शेयर किया करियर काउंसलर आंटी के साथ. आंटी बोलती है देख भाई, साइंस की दुनिया तो तेरे लिए बनी ही नहीं है, बिकॉज तेरे को लैब में एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, केमिकल्स के साथ खेलना पड़ेगा, तो तेरी आंखें भी डैमेज हो सकती है. क्या लगता है आफ्टर दिस स्टेटमेंट कमिंग इनटू पिक्चर, विल माय पेरेंट्स अलाउ मी टू टेक साइंस? No. सो मेरा सपना एक ही मिनट में चकनाचूर हो गया. अब वो टाइम पे ऐसा कुछ विल पावर नहीं था कि मतलब बोलते ना अगेंस्ट दैट आइडिया, तो ऑफ स्ट्रीम आप मतलब बोलते ना चाहे दुनिया आपको कुछ भी बोले लेकिन आप साइंस ही परस्यू करो. आर्ट्स में आना नहीं था, 25-25 मार्क्स के आंसर लिखने होते थे, तो मैंने बोला भाई दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प मी. ओके, सो साइंस जा नहीं सकता था, आर्ट्स मुझे जाना नहीं था. सो अपनी गर्लफ्रेंड को मुझे छोड़ना पड़ा, और तुमको पता ही होगा कि पहला इश्क त्यागना कितना मुश्किल होता है. वैलेंटाइन अभी अभी गया है, तो मेरा बाय डिफॉल्ट ऑप्शन कॉमर्स क्लिक हुआ. ओके, एंड इट वाज नॉट अ लव मैरिज, इट वाज एन अरेंज्ड मैरिज. ओके, लेकिन आई बिकमिंग अ सक्सेसफुल सीए प्रूव्स दैट अरेंज्ड मैरिजेस आर सक्सेसफुल इन इंडिया. हालांकि इसके बाद एक तो कॉमर्स में पहुंच गया था. अब किक स्टार्ट कैसे मिला सीए के लिए? सो वो टाइम पे कॉमर्स में रेप्यूटेड चीजें दो ही थी, ऐसे सीए और एमबीए. सो सीए वर्सेस एमबीए ऑलवेज यूज्ड टू बी अ डिबेट कि भाई कौन महान है, देयर यूज्ड टू बी अ बैटल. अब उतना सुना था कि भाई एमबीए में जाओगे तो सीईटी डिफिकल्ट है, हार्ड टू क्रैक. एक बार वो हो गया, फिर आगे मक्खन मस्का, जिंदगी एकदम मस्त चलेगी. सीए में सुना था भाई सीपीटी या फाउंडेशन तुम्हारा देने का, दैट इज बेड ऑफ रोजेस. आगे अभिमन्यु का चक्रव्यूह क्लियर हुए तो ठीक है, नहीं तो भाई उधर ही पिट जाओगे अंदर ही. अब यही टाइम पे जब मैं ये सी और एमबीए दोनों ही ऑप्शंस को व्यू कर रहा था, मेरा ज्यादा इंक्लिनेशन एमबीए की तरफ जा रहा था. ओके, एंड आई वांटेड टू बिकम एमबीए इन एचआर काइंड ऑफ अ थिंग, वैसा ऐसा जा रहा था. लेकिन वही टाइम पे मेरे पिताश्री के चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब है मिस्टर महेश माड़कुलकर, वो लोग, उन्होंने मेरे जिंदगी में कदम रखा. ये वो ऐतिहासिक इंसान है जिसने मेरा नजरिया ही बदल दिया. ही इग्नाइटेड दैट स्पार्क विद इन मी. अब कैसा हुआ कि डैड एक दिन जस्ट उनके ऑफिस में बैठे थे, एंड काफी फ्रेंडली रिलेशन है उनका उनके सीए के साथ. सो सीए सर को उन्होंने बोला कि अभी ऋषभ के करियर का हम डिसाइड कर रहे हैं. तो सीए सर ने बोला एक काम करो, भेजो. अब बहुत ही उत्साही इंसान बोलता है मेरे पास भेजो एक बार उनको, एक बार. एंड ही इज ऑलवेज एंथुजियास्टिक एंड एनर्जेटिक टू गाइड फ्यूचर एस्पिरेंट वैसा. तो अब मेरे डैड आके बोलते हैं तेरे को पता है आपने माड़खोलकर साहब तेरे को बोला था. मैं बोला कौन माड़खोलकर साहब? फिर उन्होंने पूरा बैकड्रॉप दिया एंड सीए भी. अब आप सोचो, जिंदगी में कभी भी किसी प्रोफेशनल को नहीं मिले, एंड 10th के वेकेशन में सडनली यू आर गोइंग टू मीट अ प्रोफेशनल. अब मुझे तो पता भी नहीं था, मैं अपना बिंदास ना से शॉर्ट्स वॉर्ट्स पहन के चला गया, मुझे पता नहीं था ऑफिस कल्चर क्या होता है. एंड उन्होंने मेरे को जस्ट एक सीधा साधा सवाल पूछा, हाउ मच डू यू एक्सपेक्ट इन 10th? ये वो सवाल होता है जो दुखती नस पे हाथ रखता है आपकी नॉर्मली, कि भाई ऐसा क्यों पूछ रहे हो मेरे को, एंड रिजल्ट तक तो चैन से जीने दो. ओके, एंड मैंने ना ऐसी वो फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन में ऐसी जस्ट फॉर्मेलिटी में जवाब देना करके
हाँ सर मे बी 80 मिलेंगे, ओके मे बी 80% मिलेंगे। वो 80% सुन के उनकी आंखें ऐसे चमक गई एंड ही वाज लाइक एक काम कर फिर तू सीए कर। मैं बोला संबंध क्या है इन दोनों का, 80 किधर सीए किधर। लेकिन ऐसे बोलता ना जौहरी को हीरे का परख होता है। आई डू नॉट कंसिडर माई सेल्फ टू बी अ हीरा, लेकिन आई कंसिडर हिम टू बी अ रियल जौहरी। आपको पता है कभी कभी आपको सामने वाले के फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, पोस्चर से उसका माइंड रीड करने को आएगा। मे बी ही डिड दैट एट दैट टाइम एंड ही रियलाइज दैट ये बंदे में वो पोटेंशियल है कि ये वो कर जाएगा। अगर विजुअली चैलेंज होने के बाद भी अगर 80% क्लेम कर सकता है छाती ठोक के, तो ये सीए भी कर ही जाएगा। एंड वो अंदर की जो चिंगारी जो कहीं ना कहीं बुझ गई थी उसको जलाने का काम मिस्टर महेश मड़कुलकर ने किया। एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट टू बिलीव व्हाट इफ यू आर अ विजुअली चैलेंज्ड। भाई विजुअली चैलेंज्ड भी सीए कर सकता है। आप सोचो दिस डायलॉग कमिंग फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैटर्स अ लॉट। एंड इसने मेरे अंदर के सारे ही बैरियर्स को तोड़ दिया एंड फिर शुरू हुआ वो जॉयफुल जर्नी ऑफ बिकमिंग अ कमिटेड अचीवर सीए। Thank you so much, sir. I can tell you all of the participants who were listening to you were just like focusing on you. So thank you for sharing that. And one more thing I would like to add is the jury saw a hero in you. Definitely, even if you don't consider yourself, after hearing the session, we can say you are a diamond, you are a hero. And moving forward, sir, we have talked a lot about your like profession, that is CA and everything. Wanted to know something more about like what are your hobbies and interests? Okay, Our so audience is quite keen to know. यस यस सो नॉर्मली ना एक विजुअली चैलेंज को जब देखा जाता है तो इट इज लाइक कि एकदम ना ड्राई डल बोरिंग नीरस पर्सनालिटी का ना इमेज उन लोग के माइंड में क्रिएट होता है। ऐसा बोल के कि भाई क्या ही कर लेगा, बहुत तो बहुत पढ़ाई किया तो किया, अदरवाइज तो वो भी नहीं किया। So I like writing poems. I like means you would be surprised, stunned, and shocked to know this that I also do photography. So photography is also one of my hobbies, and I write write-ups. I write poems. Okay. Apart from that, interests wise भी मैं अगर तुमको बोलूँ तो एक तो इंटरेस्ट शेयर कर चुका हूँ स्पिरिचुअलिटी, साथ ही आई लाइक मेकिंग न्यू फ्रेंड्स एंड उससे भी ज्यादा मतलब मेरे को नया नया चीजें सीखना बहुत ज्यादा पसंद है। एंड आप मानोगे नहीं बचपन से लेके मैंने जो जो चीजें की है ये सारी चीजें आप सिर्फ ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आएगा। सो सिंहगढ़ और माथेरान जैसे फोर्ट्स का मैंने हेवीएस्ट ट्रेन्स में ट्रैकिंग किया है, रिवर राफ्टिंग किया है, रॉक क्लाइंबिंग किया है, मुंबई मैराथन 7 किलोमीटर ड्रीम रन में पार्टिसिपेट किया है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारा चीजें मैंने अपना तारीफ करने नहीं बोला, पर ये इसलिए बोला ताकि आपको बता सकूं आई एम नॉट अ डिसेबल्ड बट अ डिफरेंटली एबल्ड एंड we are never disabled by the disabilities we have, we are always able by the abilities we have. Oh my god. So I now though I guess like you have a great interest in poetry, because the way we are having this conversation, the way you are adding all these literary elements, the fun elements, that truly believe us, and all the trekking, all the adventure you have done is like commendable. Thank you for sharing that. Anybody else from the audience have any other question? If you have, you can shoot. The floor is all yours. Sir, can you share a few lines of poetry with us also? So मतलब लंबा है, झेल पाओगे? Yes, Sure, sir, sir. So sure. मतलब 5 मिनट में खत्म हो जाएगा वैसे तो, पर मैंने ज्यादा वो नैरेट नहीं की, मतलब काफी साल पहले लिखी थी तो आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू नैरेट इट फ्लुएंटली, वैसा अभी उसका आइडिया नहीं है वैसा। सो लेकिन फिर भी जो भी होगा बेस्ट ही होगा, ये तुमको गारंटी देता हूँ। सो एक्चुअली इस पोएम के पीछे का रहस्य ये है कि वन ऑफ माय ऑफिस कलीग्स, शी डिड नॉट क्लियर इन ऑफिस कलीग्स, यहाँ गर्लफ्रेंड ने, ज्यादा आगे नहीं जाना क्योंकि कैसे यूथ थोड़ा ज्यादा आगे का सोच लेते हैं, यहाँ सर बताओ बताओ गर्लफ्रेंड। So office colleague थी and she did not clear in the first attempt of CA final. So she just asked me to put something motivational. अब मैंने बोला कि भाई किसी और ने लिखा हुआ अपन क्यों शेयर करने का, उसके बदले तो बेटर है कि भाई खुद का ही आइडिया शेयर करें। तो तब इस कविता का जन्म हुआ था। ओके, कविता का टाइटल है लाइफ के लेसन्स, लाइफ के लेसन्स। सो a joyful journey from birth to death teaches to be happy life's every breath. A joyful journey from birth to death
teach us to be happy life's every breath. कहीं उतार कहीं चढ़ाव तो कभी खुशी कभी गम, कहीं उतार कहीं चढ़ाव तो कभी खुशी कभी गम, ना होने देना तो कभी उम्मीद और उत्साह कम. Twists and turns तो आएंगे ही on life's each priceless path. Twists and turns तो आएंगे ही on life's each priceless path. ना छोड़ना तो कभी हिम्मत, हौसले और will power का साथ. Where there is a will, there is always a wonderful way. Where there is a will, there is always a wonderful way. After every night follows a delightful day. After every night follows a delightful day. जैसे हर ताले की होती है एक चाबी, जैसे हर ताले की होती है एक चाबी, वैसे एवरी प्रॉब्लम हैज इट्स सॉल्यूशन. सो डट कर हंस के प्यार से फेस करना तू लाइफ में हर एक सिचुएशन. सो डट कर हंस के प्यार से फेस करना तू लाइफ में हर एक सिचुएशन. रखना अपने प्रेशियस पोटेंशियल में सदा फेथ, रखना अपने प्रेशियस पोटेंशियल में सदा फेथ, क्योंकि एज यू नो स्माइल इज अ कर्व दैट सेट्स एवरीथिंग स्ट्रेट. क्योंकि as you know smile is a curve that sets everything straight. Wake up with determination and go to bed with satisfaction. Wake up with determination and go to bed with satisfaction. क्योंकि happiness in heart and peace in mind is only life's divine destination. ध्यान से सुनना और नोट करके रखना, क्योंकि happiness in heart and peace in mind is only life's divine destination. अगर कहीं तू घबराए कहीं डर जाए तो stay calm and cool. अगर कहीं तू घबराए कहीं डर जाए तो स्टे काम एंड कूल, क्योंकि हर मुश्किल से तैरना सिखा ही देता है जिंदगी का स्विमिंग पूल. स्ट्रेस, एंगर, ईगो, फ्रस्ट्रेशन बना देते हैं इंसान को जीरो. स्ट्रेस, एंगर, ईगो, फ्रस्ट्रेशन बना देते हैं इंसान को जीरो. तो इन वीकनेसेस को करके लेट गो, बन जा तू हीरो. फ्रॉम देयर ओन पर्सपेक्टिव एवरीवन इज ऑलवेज राइट. From their own perspective everyone is always right. So please do avoid judgment, criticism और सही गलत की फाइट. अब आगे का लाइन बहुत ध्यान से सुनना, पूरे जिंदगी भर तुमको काम आएगा. साफ कर दे अपने मन से नेगेटिविटी की गंदगी, साफ कर दे अपने मन से नेगेटिविटी की गंदगी, तभी तो गुलाब के फूल जैसी महक उठेगी जिंदगी. तभी तो गुलाब के फूल जैसी महक उठेगी जिंदगी. Every scintillating sunrise comes with a ray of hope. Every scintillating sunrise comes with a ray of hope. इन्हीं आशाओं से रंगीन बनकर ही तो झगमगा उठता है लाइफ का कलाइडोस्कोप. You only fail when you stop trying. You only fail when you stop trying. So stand again, move ahead and stop crying. जब तू छोड़ देगा कोशिश करना तभी होगी तेरी हार. जब छोड़ देगा तू कोशिश करना तभी होगी तेरी हार. तो करके कोशिश बार बार पहन ले तू जीत का हार. अनकंडीशनल लव एंड एक्सेप्टेंस से जोड़ ले तू अटूट कनेक्शन. अनकंडीशनल लव एंड एक्सेप्टेंस से जोड़ ले तू अटूट कनेक्शन. तभी बनेगा हर स्प्लेंडेड सोल से तेरा रॉकिंग रिलेशन. जी ले हर प्रेस्टिजियस पल को बना के एक सेलेस्टियल सेलिब्रेशन. जी ले हर प्रेस्टिजियस पल को बना के एक सेलेस्टियल सेलिब्रेशन. फिर यही मैजिकल मोमेंट्स बनेंगे तेरे लाइफ के मार्वेलस मोटिवेशन. फिर यही मैजिकल मोमेंट्स बनेंगे तेरे लाइफ के मार्वेलस मोटिवेशन. आखिरी लाइन है, जरा गौर फरमाइएगा. लाइफ के इन ल्यूमिनस लेसन्स की जो सुलझाले मिस्ट्री, लाइफ के इन ल्यूमिनस लेसन्स की जो सुलझाले मिस्ट्री, जो मास्टर कर ले ऑप्टिमिज्म का सीक्रेट, वही बना सकता है ग्लोरियस हिस्ट्री. वही बना सकता है ग्लोरियस हिस्ट्री. वही बना सकता है ग्लोरियस हिस्ट्री. Wow. That was amazing. Like, I don't even have some good adjectives how to describe that, but like just amazing. सर आपको सुन के बिल्कुल नहीं लगा कि आपने रिवाइज नहीं किए ये पोएम. यू वर सो कॉन्फिडेंट, बहुत अच्छा. एंड क्योंकि ये मैंने लिखी थी एक्चुअली 5 साल, मतलब 6 साल हो गए ऑलमोस्ट इसको लिखे हुए. 2015 के आसपास ऑलमोस्ट लिखी हुई थी ये. और जो लाइंस आपने बोली कि यू शुड स्टे काम एंड कूल, मतलब आपको हैप्पी ही रहना चाहिए फिर चाहे अच्छा हो या नहीं. एंड वो पर्सपेक्टिव्स वाला पॉइंट कि सब लोग पर्सपेक्टिव से राइट होते. वाओ, वेरी नाइस. That is amazing. So life is never stopped. Like life में कभी कोई stop आता नहीं है. Everybody has always thinking what to do next. अब आगे क्या? So you'd like to know what
are your next goal in life, or next major goal or future plans, any that you'd like to share with us? सो नंबर 1 और एकमात्र गोल अगर मैं अपना बोलूं लाइफ का, तो एक्चुअली ऐसा है कि आई वुड लाइक टू बिकम अ लाइफ कोच फॉर एवरी स्टूडेंट इन दिस वंडरफुल वर्ल्ड. ओके, सो जितना भी पॉसिबल हो, मेरा बेस्ट ऑफ द नॉलेज से जितना भी मैं जो बोलता ना भूल भुलैया में भटके हुओं को मतलब मेंटोर करके उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकूं जितना भी, ये मेरे बकेट लिस्ट पे सबसे टॉप प्रायोरिटी पे आएगा. साथ ही आई एम एट अ स्ट्रेस फ्री भारत, आई एम एट एन एडिक्शन फ्री हिंदुस्तान. ओके, आज एडिक्शन फ्री के ऊपर जरा मुझे बोलना है. काफी दुख होता है व्हेन आई सी मेनी सीए फील्ड स्टूडेंट्स and many other field students going into cigarette ka dhua, alcohol ka nasha and pornography. So basically this has taken over the control of the youth. So basically I have been a counselor for many such cases and I would like to rehabilitate them and मतलब बोलता ना नेगेटिविटी से बाहर निकाल के हर एक को एक पावर ऑफ पॉजिटिविटी एक्सपीरियंस कराना, यही मेरा फ्यूचर गोल रहेगा. एंड मैं आप लोग सब लोगों से एक अपील करूंगा, इन केस आप को कोई भी हेल्प सपोर्ट या असिस्टेंस चाहिए, कोई भी वियर्डेस्ट सिलिएस्ट टॉपिक के ऊपर भी, तो भी यू कैन कनेक्ट विद मी, चाहे वो स्टडीज हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. इवन इफ यू आर अ शिकार ऑफ एनी नॉनसेंस मोस्ट एडिक्शंस इन दिस वर्ल्ड आल्सो, देन आल्सो आई विल नॉट बी नेगेटिवली जजिंग यू, बिकॉज मेरा एम, मैंने जैसे कहा कि एडिक्शन फ्री हिंदुस्तान, और उसका स्टार्ट, उस मुहिम का स्टार्ट मेरे को यूथ से ही करना है. Like, you have amazing, like, great aspirations towards the youth, and I hope that the youth is able to fulfill all the goals you have in mind, and our country grows to and reach greater heights. Thank you so much. And in the chat box, our audience is going, like, appreciating you a lot. So if anybody wants to appreciate or wants to ask anything from sir, can please unmute and convey your message. I would just add one single point. Like, sir, it was like an amazing session listening to all the insightful points you mentioned. And what I noticed from the past 1 hour is a very small but rather an important detail. Is that there was always a smile on your face. This was something, it's very tiny detail people might kind of ignore. But if you are looking out for a speaker, you look out, you just don't look out, okay, kahan baitha hai, kaise baitha, but if there's a smile on their face and they're conveying something which they really do believe in, that's all hell lot true. And thank you so much for giving out such an inspiring story of yours and also your motivation to make the youth of India to have a better future and have a better tomorrow as well. Thank you. एंड ये मैं बोलूंगा जरूर से कि स्माइल एक ऐसी इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है जो माइंड के मोबाइल की बैटरी को चार्ज कर देती है. सो इट टेंड्स टू फिल यू अप विद द पावर ऑफ पॉजिटिविटी and it relaxes, refreshes and re-energizes your mind's muscles. So keep smiling should be the first agenda for every delightful day of your lively life. Definitely. Okay, so we had a great message in the chat box. Archie, you are there in the audience. If you like, you can unmute and share with sir. Or if you want, we can also convey it for you. But we will really appreciate if you can unmute. I'm audible? Yes, Archie. Yes, so actually I want to share my own experience with you all. Even my elder sister is blind, and for many years she was suffering from depression, and now she is 22, and now I insisted her and my family to let her go to school, and it's just been a week that she is going to school, and it's amazing to hear you that you are a CA being a disabled person, and that something motivated me. I just told her that okay, there is a person who is blind and he became a CA, and motivated her to grow in life even after so much rush in her life. So in case you need any of my help, you can surely do contact me, okay, in the future.
Yeah, sure. I really want to. Actually, I just needed to message you also for the same. Yes. So basically मेरा contact number just share कर दिया जाए वैसा करके मैं को तो वैसे अभिषेक साहब के पास तो है मेरा contact number already. Yes, sir. So I'll share. Yes. Thank you, sir. Thank you very much. And you're very motivating and inspiring. वो all credit goes to my support system जैसे मैंने कहा ना, because उसके बिना कुछ नहीं होता. I am just a tiny creature in this universe actually. Yeah. Thank you. Thank you so much, Archie, for sharing your experience in life. Okay, sir, a lot of people in the chat box were like appreciating the poem, and like I got messages like, "Can we get this poem?" So, sir, we wanted to know like, have you published it somewhere? Yes, so I मतलब अभी मेरे को याद नहीं, वैसे एंकर पे एक पॉडकास्ट में मैंने रिकॉर्ड किया है, उसके अंदर मैंने आशाएं गाना भी गाया था और ये पोएम भी आई गेस बोला साथ में ही ये रिकॉर्डेड है वैसा. सो आई विल जस्ट सी टू इट, लेकिन जरूर से वो ये है, मतलब मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग उसका अवेलेबल है, सो आई विल बी श्योरली एबल टू सेंड इट. So from the audience like Mansi and others who appreciated it, we will take it from sir and और share it. डायरेक्टली और इवन क्या था, यू कैन डायरेक्टली आल्सो सी. आई वुड रिक्वेस्ट, मतलब जितने भी 50-60 जितने भी लोग जुड़े होंगे, इवन इफ यू पर्सनली कनेक्ट विद मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, इट इज कंप्लीटली फाइन, बिकॉज आई लाइक टू कनेक्ट विद यू, आई लाइक टू टॉक विद देम वन ऑन वन. और ये अभिषेक साहब को पता है कि उनके बाद भी, उनके बैच के बाद भी वी हैड अ टॉक वैसा. सो मैं जहाँ पे भी जाता हूँ वहां पे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर कभी भी तुमको कॉल पे बात करना हो, बिंदास से मेरे को जस्ट व्हाट्सएप करना, मैं तुमको एक टाइम दे दूंगा एंड वी कैन आल्सो श्योरली कनेक्ट. ओके Sure, Abhishek, now it's up to you. Share sir ka contact with everybody. और नहीं किया इसने तो धो डालना इसको. नहीं किया तो धो डालना, मेरे तरफ से परमिशन है. Sure, sir. Anybody else has any questions, or should I go ahead with the sections? Okay, we'll go ahead. Sir, like previously you talked about how you were choosing the field like science, art, or commerce, and you had a great person in your life, your father, CA. But when you were going to choose such a big profession, like when we go into commerce, people usually do bachelor's and finish, but doing CA, it's like a tough course for tough people. But wanted to know, like when you were going forward, were there any judgments by society, like career choice on the basis of your career choices? So आपका जो क्वेश्चन है उसको अगर मैं एक ही सेंटेंस में सम अप करूं, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग. सो ये सब लोग इसके शिकार होते हैं, पर मैं आपको एक चीज बोलूंगा, लोग क्या सोचेंगे अगर वो भी हम ही सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे. सो जैसे बोलता ना, जितने मुंह उतनी बातें, एंड लोगों का काम है कहना, तो भाई कितने मुंह को बंद करने जाओगे और कितने माइंडसेट्स को कंट्रोल करोगे. हम अपने सगे माँ बाप से भी 100% सहमत नहीं हो पाए आज तक, तो मेरे को ये बताओ कहाँ हजारों लाखों करोड़ों को कंट्रोल करने चले हो. एंड उनका एक कमेंट से अगर आपने खुद के पोटेंशियल को डिवैल्यू कर दिया, इसका मतलब तो आप रोबोट बन गए, आप कठपुतली बन गए उनके हाथों में. सो वी बिकम वल्नरेबल एंड वीक एंड वी हैव गिवन आवर लाइफ इन देयर हैंड्स. तो वो तो वैसे भी डिजायरेबल नहीं होगा. सो डू नॉट डिवैल्यू योरसेल्फ बिकॉज ऑफ अनदर्स इनएबिलिटी टू जज यू. एंड नेवर फाइट विद पिग्स, अदरवाइज यू विल गेट डर्टी एंड दे विल एंजॉय. नेवर फाइट विद पिग्स, अदरवाइज यू विल गेट डर्टी एंड दे विल एंजॉय. अगर कोई हाथी एक रोड पे निकलेगा तो हजारों कुत्ते उसकी तरफ देखकर भौंकते हैं, लेकिन हाथी हर एक डॉग के तरफ स्टोन नहीं फेंकता, अदरवाइज वो कभी भी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच ही नहीं पाएगा. Hello. So, Yeah. hello. Yes. Yes. Okay. Yes. Just a minute. Yeah. So, I want you to take a 5-minute meditation, if you can. Yes. Yes. It's very So impactful. I want everyone to have this journey. हाँ. With So 5 minutes we have to halt वैसा. Yes, sir. Yes, चलेगा. Yes, sir. Hello. You can start with the Yes. meditation. Like, Yes. Meditation मैं चालू करूंगा, लेकिन at the end I would prefer rather at the end वैसा. yes, cool, sir. Okay, no worries. Yes, वो at the हाँ वैसे करेंगे. Actually मेरा हाँ वही कम्युनिकेशन गैप हो गया. Actually मेरे को ऐसा लगा कि शायद you were asking to take a break, उसके वजह से मैं वैसा समझा, ऐसा उल्टा हो गया ऐसा. No, sir. Yes. So meditation हाँ वो अपन एंड में करेंगे.
Okay, sir. From the list, you said like you like making friends, like it's one of your interests to like make friends. But when you were in your school, the journey of having visual impairment like at a greater level, and what was the experience with your peers? Like without like all everybody has faced those peer pressures or bullies in school, but still made friends. Like what was your personal journey in that area? सो ऐसा है कि अब देखो स्कूल में इनोसेंट एज है, इमेच्योर्ड एज है, तो वो टाइम पे अपना भी इमेच्योर होता है, सामने वाले का भी इमेच्योर होता है। सो बेसिकली हम भी समझ नहीं पाते, सामने वाला भी समझ नहीं पाता। तो काफी लोग थे जो चिढ़ाते थे, काफी लोग थे जो ऐसे ही कुछ ना कुछ कमेंट्स पास करते थे, एंड तभी दिल पे बात लगती भी थी, दिल पे बात चुपती भी थी, ऐसा भी लगता था, वो वाई मी वाला एटीट्यूड भी आ जाता था। पर बाद में धीरे धीरे व्हेन आई ग्रू अप, एट दैट टाइम आई रियलाइज कि भाई वो तो ठीक है, मतलब वो लोग ने भी अपने इनोसेंस में और अपने इमेच्योरिटी में बोला था, एंड शायद वो लोग ने भी अपना पहला केस ऐसे देखा था, तो उनको भी शायद वो डाइजेस्ट नहीं हुआ बेसिकली। तो बाद में कभी भी हमारा झगड़ा टाइप्स ऐसा कुछ नहीं हुआ स्कूल में, या मेरा रैगिंग नहीं हुआ, या बुलिंग तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। पर ये था कि कभी कभी कुछ एडवर्स कमेंट्स या चिढ़ाना, या तो ऐसे जस्ट बोलता ना हंस हंस के कुछ ऐसा कमेंट जो बुरा लग जाए ब्लाइंडनेस के ऊपर, वो बोलना, ये सारा चीजें होता था। पर बाद में वो चाइल्डहुड डेज बन के उसका भी मैंने मेमोरीज को नेगेटिव नहीं लिया, उन मेमोरीज को उसमें से मैंने फिल्टर आउट करके सिर्फ पॉजिटिव वाला ही स्टफ याद रखा। एंड व्हेन इट केम टू कॉलेज, मतलब व्हेन इट केम टू स्कूल ओनली, मेरा एक जिगरी लंगोटिया, आई वुड लाइक टू टेक हिज नेम, मिस्टर महेश, सो ही इज नाउ एन इंजीनियर, एंड अभी फिलहाल हमारा कांटेक्ट होता है, पर काफी लिमिटेड, बिकॉज एक कॉमर्स एक साइंस तो आपको पता ही होगा, अलग अलग ही हो जाती है पूरी दुनिया। पर जूनियर केजी से लेके 10th स्टैंडर्ड तक 12 साल तक आप उस एज में हो जब आप खुद का लाइफ भी नहीं संभाल सकते। तब आप सोचो, अगर आप किसी और का मदद करो, किसी और का लाइफ संभालो, तो कितना बड़ा अचीवमेंट होगा। और ये महेश भाई साहब ने किया, और बड़े शानदार तरीके से, बड़े जानदार तरीके से, बड़े जिंदा दिल तरीके से किया। सो स्कूल पे ब्लैक बोर्ड पे लिखी हुई चीजें डिक्टेट करना, स्कूल में लेके आना, लेके जाना, पीटी पीरियड, अब तुमको याद ही होगा पीटी पीरियड जिसके लिए हम स्कूल जाते थे, वहां पे वो जो ट्रेनर दिखेगा एक्सरसाइज, वो तो मुझे दिखेगा नहीं। सो बेसिकली ये भाई साहब मेरे को पूरा एक्सप्लेन किया करते थे सारा एक्सरसाइजेस, एंड ऐसे हम आइदर तो मैं फर्स्ट रैंक या वो फर्स्ट रैंक, वैसे करके हमारा जुगलबंदी चलते रहता था। वी यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशंस आल्सो टुगेदर, तो हमारा जय वीरू की तरह जोड़ी फेमस हुआ था। सो उसको मैं हेड्स ऑफ करना चाहूंगा, सैल्यूट करना चाहूंगा उस मेच्योरिटी के लिए। when it came to 11th standard, मतलब when it came to, I belong to Mulund College of Commerce, so starting 1 week I did not get any friend। मतलब ऐसा था कि मुझे अनाउंस करवाना पड़ा अपनी इंग्लिश के पास कि आप अनाउंस करो मैम कि कोई अगर हेल्प करना चाहे तो बेसिकली वो खड़ा हो सकता है, एंड या तो मेरे से आके एटलीस्ट बातचीत कर सकता है। आई वुड लव टू मेक अ न्यू फ्रेंड। ओके, सो देयर इज ऑलवेज दिस स्ट्रगल इन अ विजुअली चैलेंज लाइफ की वॉलंटरीली विलिंगली कोई फ्रेंड नहीं बनना चाहेगा। पर मैं उतना जरूर बोलूंगा, 11th से लेके सीए फाइनल तक जितने भी मेरे दोस्त बने, वो सारे कांटेक्ट में रहे, आज भी कांटेक्ट में है। और उन लोगों के लिए एक ही शेर अर्ज करना चाहूंगा, हर मुस्कान का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। हर मुस्कान का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। दोस्त तो मिल जाएंगे हजारों लाखों इस दुनिया में, मगर हर कोई मेरे फ्रेंड सर्कल की तरह अनमोल नहीं होता। सो व्हाट दे यूज्ड टू डू इज, आप सोचो क्लास में अगर आप मेरे दोस्त हो, अब एक विजुअली चैलेंज, कितने सारे सवाल, कितने सारे डाउट्स पूछेगा, तो ये लोग पेशेंटली हर एक डाउट को हैंडल किया करते थे। एंड 15 मिनट अगर कॉपी पेस्ट करने के लिए सम का टाइम मिला है, तो ये लोग पहले 7-8 मिनट मेरे को प्रायोरिटी देके मेरा डाउट सॉल्व करते थे, एंड फिर वो लोग खुद का सम कॉपी पेस्ट करते थे। ऐसे उन्होंने मेरा और उनका दोनों का स्टडीज बैलेंस किया, एंड जब ये हुआ तब मैं आज तुम लोग के सामने पहुंचा हूँ। सो मैं इस मंच के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, सारे मेरे जितने भी फेंटाबुलस फ्रेंड्स हैं, मैं सबका नाम नहीं लूंगा बिकॉज कैसे पता, होलसेल में फ्रेंड्स है मेरे कॉलेज में वैसा, जो 11 से लेके सीए फाइनल तक, लेकिन सबको यही है कि मैं उनके लिए यही बोलना चाहूंगा सब लोगों के थ्रू, 3 charismatic cheers for them, so hip hip hooray, hip hip hooray, Hooray. hip hip hooray, Hooray. yes। So this was the answer to your question। so मतलब मेरे को फ्रेंड सर्कल कभी भी ट्रोलिंग वाला या रोस्टिंग वाला या कभी भी ऐसा नेगेटिव
नजरों से देखने वाला नहीं मिला। उल्टा इनफैक्ट दे यूज्ड टू बिलीव मोर इन मी, ये बोल के कि भाई उल्टा तेरा तो लर्न हो जाएगा, हम लोग लटक जाएंगे। ओके, तो वो लोग मेरे को स्कॉलर बुलाया करते थे, हालांकि मैं स्कॉलर था नहीं, वो लोग बात है, पर एक ट्रेंड था मेरा। आई वाज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट, सो आई टुक फेलियर्स इन सीए आल्सो। I took 3 attempts in CA inter, I took 3 attempts in CA final, but still they used to call me scholar वैसा करके। I don't know why, वो क्या दिखाएगा उन्होंने मेरे में, पता नहीं मेरे को। So I got a gem of a friend circle. Oh, and that was great, sir. And we all hope that we make our friendships of college stay ahead for life, and we always make some great friends who help each other. Anybody else has any other question? Like थक गई सुकीर्ति थक गई बेचारी। सुकीर्ति बोली कब तक ड्रैग करूं मैं, कब तक मैं, मेरे से नहीं हो पाएगा। नहीं सर, बिकॉज मुझे चैट बॉक्स में आता रहता है कि मुझे सर से कोई क्वेश्चन yes. पूछना है, तो आई एम लाइक किसी और को अभी कुछ पूछना है तो गो अहेड। If not, then even I have certain questions left. Sir, like in this whole 1 hour of session, we always heard your parents being the main support system. Like, could you more elaborate how they contributed to your success? So even the most valuable vocabulary of all the luminous languages in this wonderful world will fall short to express my gratitude towards my parents. So मतलब इंसान के स्वरूप में भगवान, ऐसा जरूर से मैं बोलूंगा। एंड कैसा है कि स्टार्ट टू एंड नेवर अ सिंगल क्वेश्चन मार्क, नेवर अ सिंगल डाउट on my potential, on my capabilities, on my हुनर, on my talent। एंड वो लोगों ने हमेशा सिर्फ एक ही स्टेटमेंट बोला, भाई तू चाहे कुछ भी कर, हम लोग तेरे साथ ही रहेंगे। एंड यही जो था उनका जो सपोर्ट सिस्टम, जो बैकबोन बोलते हैं ना, जो मॉरल सपोर्ट रहता है। अगर आपके पेरेंट्स ही आपको सपोर्ट नहीं करे तो आपको घर पे ही हेल टाइप का फीलिंग आएगा, पर मेरे को घर पे ऐसा हेवन, पैराडाइज और ऐसे जन्नत टाइप का फीलिंग आया जो नॉर्मली यूजुअली विजुअली चैलेंज्ड लोगों को नसीब नहीं होता। अब अपन ने स्कूल डेज में तो मेरे पेरेंट्स का रोल देखा ही था। अब साथ में मैं आपको ये भी हाईलाइट करके बताऊंगा, सीए के टाइम पे स्टडीज, कैन यू जस्ट इमेजिन, माय मॉम इज अ होम मेकर, ओके, और एक हाउसवाइफ, एक होम मेकर का काम सबसे टफ होता है। हालांकि हम उसको सबसे चिंदी समझते हैं, वो अलग बात है, पर सबसे ज्यादा 24/7 का ड्यूटी अगर हो किसी का, एंड उसमें आई हैव दादी हु वाज एट दैट टाइम 85 इयर्स के आसपास, अभी शी इज नाउ 92 93 वैसा। तो जब मेरा सीए का स्टडीज चल रहा था तो 82 से लेके 85 उतना था उनका एज वैसा। तो अब वो ओल्ड एज में उनका स्केड्यूल संभालना, फिर उसके बाद सबका खाना देखना, खाना पीना सब कुछ देखना, घर का सारा हाउस होल्ड कोर्स देखना। उसके बाद ऑल्सो शी यूज्ड टू टेक आउट मिनिमम 4 hours फॉर माई स्टडीज ऑन अ डेली बेसिस, इफ नॉट इवन 4 hours तो भी एटलीस्ट 2-2.5 घंटा तो पक्का होता ही था। मतलब वो टाइप की महान मूर्त है वैसा, जिन्होंने खुद का इंटरेस्ट को, खुद के पैशंस को, खुद के हॉबीज को साइड में रख दिया। खुद के मतलब मेरे पेरेंट्स कभी भी फंक्शंस में आते जाते नहीं थे, जस्ट क्योंकि वो लोग मेरे पे ध्यान डिवोट कर सके। माय डैड इज अ सिविल इंजीनियर। अब तुम सोचो, एक सिविल इंजीनियर अगर उनको सीए का स्टडीज करवाना हो तो सबसे पहले तो उनको कॉमर्स समझ के लेना पड़ेगा। लेकिन मेरे डैड ने पूरा कॉमर्स समझ के लिया, अकाउंट से लेके कॉस्टिंग, एफएम तक सब कुछ, जस्ट फॉर माय स्टडीज, ओके। एंड ही हैज हिज ओन कंस्ट्रक्शन साइट। सो अब एक साइड से कॉल आते थे, एक साइड पे ध्यान देना था, दूसरे साइड 5-5 6-6 घंटा मिनिमम ही यूज्ड टू डिवोट वैसा। सो आप देखोगे नींद भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है, सैक्रिफाइस किया है मेरे स्टडीज के लिए। सो जो अनकंडीशनल सेल्फलेस वाला जो बोलता ना, एक जो लव, एक जो अफेक्शन होता है, उसका पूरा हम मतलब बोलते हैं लिविंग एम्बॉडीमेंट ऑफ गॉड मैंने अगर देखा हो कहीं पे, ओके। जैसे गंगा नदी काफी पवित्र होती है, ऐसा मतलब बोला जाता है कि अपने शास्त्रों में कि भाई, लेकिन मेरे यहाँ पे तो घर पे ही गंगा बहती है। एंड श्योरली आई ऑलवेज टेक ब्लेसिंग्स ऑफ माय पेरेंट्स ऑन अ डेली बेसिस। आई हैव मेड इट अ रूटीन वैसा कि जिन्होंने अपना पर्सनल लाइफ भी कुर्बान कर दिया सिर्फ अपने बेटे के लिए, वो आप सिर्फ इमेजिन करके देखो कि वो भगवान कैसे होंगे। Okay, we all went speechless for a second. We were like, हिंदू मैथोलॉजी में कहा जाता है,
हिंदी माइथोलॉजी में हमेशा दिखाया जाता है कि बच्चे पेरेंट्स की तरफ करते हैं। मुझे वो शब्द नहीं याद आ रहा, पर एक बच्चा हमेशा अपने पेरेंट्स को कंधे पे ले जाके करता है, बट फॉर इन योर केस यू कैन से दैट योर पेरेंट्स हैव हाँ, टेकन यू एवरीवेयर। मतलब normally there is this famous example of Shravan Kumar taking his श्रवण parents कुमार, on the pilgrim. या Yes, लेकिन या एक्चुअली ऐसा है कि उल्टा हुआ है यहाँ पे ऐसा करके कि मैं तो उनका श्रवण कुमार नहीं बन पाया वैसा करके, लेकिन वो एक जो आइडियल इंस्पिरेशन बन सकते हैं सब सारे पेरेंट्स के लिए भी कि हाउ शुड एन आइडियल पेरेंट बी। ओके, मतलब तुम सोचो सबसे पहले तो एक डिसेबल्ड को त्यागना नहीं और उसका अपब्रिंगिंग एक नॉर्मल चाइल्ड की तरह ही करना, कभी भी उसको यूजलेस क्रीचर नहीं मान के उसको वो हर पॉसिबल सहूलियत देना, कभी भी पार्शियल या डिफरेंट ट्रीटमेंट नहीं देना। लेकिन आई हैव अ यंगर ब्रदर एंड उल्टा एक बार के लिए मैं ये बोलूंगा कि एक बार के लिए मेरे को ज्यादा लाड़ प्यार और पैम्परिंग मिला रहेगा मेरे ब्रदर से, एक बार के लिए उसको शायद वो खफा होगा कि भाई मेरे को भी थोड़ा वक्त दे दो। लेकिन कभी भी आई बीइंग अ डिसेबल्ड आल्सो उन्होंने कभी भी मेरे को एक नेगेटिव नजरिए से नहीं देखा। दैट वुड से। एंड सर आपने कहा कि आप उनके श्रवण कुमार नहीं बन पाए, बट वील से कि आप उनके श्रवण कुमार बन गए। लाइक आफ्टर हियरिंग दिस we won't agree to that statement, but we will agree that how your family has always supported you. That is great. And now let's move on to the part we were waiting for, sir's meditation. So sir, if you would like to take Okay. the floor for that. So I would be taking the floor. I would be just keeping my camera off because I have to take screen very नजदीक से देखना पड़ता है वैसा करके if I want to see anything zoom और वो सब पे. Okay. Yes, So sir. I would, with your prior permission, I would just be taking the camera off. Okay, for 5-10 minutes. Completely sure. Okay. So now let's get started. So I give you 30 to 45 seconds to just settle down. Instructions very simple. घर के किसी ऐसे कोने में बैठो जहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस कम हो और मेरे आवाज पे तुम्हारा ध्यान ज्यादा रहे. ओके. इंस्ट्रक्शन नंबर 2, सिट इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन. स्लीप नहीं है, स्लीप नहीं, स्लीप बोलोगे तो लुढ़क ही जाते हो तुम लोग. सो सिट इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन. एंड इंस्ट्रक्शन नंबर 3, एवरीबडी विल बी ऑन म्यूट, मतलब म्यूट पे रहेंगे सब लोग ताकि बैकग्राउंड नॉइस ना आए. ओके. सो 30 to 45 seconds you just settle and after which we will be starting. Okay. So within next 20 seconds we begin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and let's gently close your eyes. धीरे से और हल्के से अपनी आंखें बंद करना. अपने आसपास के नेचर, एनवायरनमेंट और माहौल को फील करो. स्प्रिंग सीजन, विंटर सीजन जब जस्ट गया है, समर सीजन का ऑनसेट है. ऋतुओं का राजा वसंत ऋतु. The budding flowers, the blossoming, blooming fruits. हरियाली ही हरियाली. Birds chirping in the air with full of joy. Golden yellow sun rays spreading on the beautiful blue sky. Cool breeze coming on your body with the warmth of the sun rays. नेचर के साथ वो कनेक्शन महसूस करो. Start taking deep breaths. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. यूजुअली हम अपने डेली रूटीन में ब्रीदिंग पे ज्यादा फोकस नहीं किया करते, पर आज कॉन्शियसली बिकम अवेयर ऑफ योर ब्रीदिंग. यूजुअली हम बड़ा फास्ट ब्रीदिंग करते हैं, पर आज तुम ऑब्जर्व करोगे दिस डीप ब्रेथ इज
creating a soothing effect on your mind and body. Heart rate बिल्कुल steady, breathing बिल्कुल stable, lungs का कैपेसिटी जो यूटिलाइज नहीं हो पाता था फास्ट ब्रीथ में, वो डीप ब्रीथ में पॉसिबल हो पाता है. Continue taking deep breaths throughout the meditation. अपने हर इनहेलेशन के साथ ये महसूस करो कि ऑक्सीजन तुम्हारे हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंच रहा है. तुम्हारे बॉडी का पुर्जा पुर्जा रिपेयर हो रहा है. Feel the healing, the soothing, the nursing effect of oxygen on your mind and body. All your cells, nerves, organs, tissues, bones, and muscles are getting relaxed, refreshed, and re-energized. Your body is now completely rejuvenated. It is now fully at rest. No restlessness, no unrest left in your body. कितने खुश नसीब है हम कि हमें ये नेचुरल गिफ्ट, ये बेसिक नेसेसिटी, ये ऑक्सीजन नसीब तो हुआ. कितने बदनसीब थे वो लोग जिन्हें सिर्फ इसकी कमी के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी. Count on your beautiful blessings and thank God for what you have got. अपने हर एक्सहेलेशन के साथ ये महसूस करो कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तुमने अपने बॉडी के सारे कचरे को बाहर फेंक दिया है. You are now completely detoxified, free from all sorts of weakness, illness, and tiredness. अपने बॉडी के उस हल्केपन को महसूस करो. उस चैन, सुकून, शांति, आराम को महसूस करो जो यूजुअली हम अपने डेली रूटीन में मिस कर जाते हैं. वो एंथू, वो एनर्जी, वो उमंग, वो उल्लास, वो उत्साह, वो जोश जो कहीं ना कहीं खो गया था, वो फिर से लौट कर आ रहा है. तुम्हारी बॉडी की बैटरी पूरी तरह से रिचार्ज हो चुकी है. ये तो भाई हुई बॉडी की कुछ बात. अब आओ करते हैं हम अपने मन से कुछ बात. वो मन जो बड़ा मस्तीखोर है, जो बड़ा चंचल है, जहां बुलेट ट्रेन की स्पीड से थॉट्स आते हैं, जहां समंदर की तरह क्वांटिटी में थॉट्स उछलते हैं. जैसे एक बटरफ्लाई ज्यादा देर तक एक फ्लावर पे टिक नहीं सकता, अपना दिमाग भी एक थॉट पे कॉन्स्टेंटली ज्यादा फोकस नहीं कर सकता. जैसे एक घोड़ा हमेशा भागते ही रहता है, अपना दिमाग भी कॉन्स्टेंटली दौड़ते ही रहता है. जैसे एक बंदर एक डाल से दूसरी डाल कूदते ही रहता है, अपना दिमाग भी एक थॉट से दूसरे, दूसरे से तीसरे जंप करते ही रहता है. पर आज तुम ऑब्जर्व करोगे, मेडिटेशन का जादू चल गया. फील द mesmerizing effect of the meditation. You are able to silence the conscious layer of your mind. Your mind is getting completely settled and stable. Feel that peaceful state of mind, that calm, cool, and composed version of your mind, which is the original nature of your mind, but which we lack in our daily routines. हमने अपनी बाहर की दुनिया को तो काफी बार कमेंट, क्रिटिसाइज और जज किया, पर अंदर की दुनिया को एनालाइज और इवैल्यूएट करना तो भूल ही गए. वो अंदर की दुनिया, वो फीलिंग्स और इमोशंस की दुनिया, that was left unaddressed and ignored. But let's take this outstanding opportunity to spend that marvelous me time, that mind-blowing me time, which we normally do not fetch in our daily schedule.
Meet the most priceless personality in this unique universe, and that is you yourself. Ignite the spark within you. अपने अंदर के उस सोए हुए शेर को वापस जगाओ. अपने अंदर की उस बुझी हुई चिंगारी को फिर से जलाओ. किसी ऐसी जगह को इमेजिन करो जहां पे तुम बेहद खुश होते हो. Feel that happiness, that mirth, that joy after transporting and teleporting yourself to that heaven, to that paradise. अब उस जगह पर किसी ऐसे इंसान को इमेजिन करो जिसके साथ तुम बेहद खुश होते हो, जिसके साथ ना कोई नेगेटिव फीलिंग्स, ना कोई डिप्रेसिव फीलिंग्स, ना ही कोई हार्ड फीलिंग्स हो. Favorite place combined with favorite person. Feel the multiplication and the compounding effect of that happiness. अब किसी ऐसे टॉपिक के बारे में सोचो जो सोच के तुम बेहद खुश होते हो, जिस पर तुम घंटों बातें कर सकते हो बिना रुके, बिना थके. आहा हा, क्या ही मजा आ गया. The rarest combination on this earth. Favorite place, favorite person, favorite topic combined together. Happiness, peace and positivity at their peak. जब मिल बैठे हैं ये तीन यार तो क्या कम है यारो. अपने अंदर उछल रहे उस खुशी के समंदर को महसूस करो. You are now fully free from all sorts of negative emotions. सारा stress, anger, ego, frustration, irritation, सारा panic, anxiety, fear, guilt, regret, dissatisfaction, disappointment, सब completely wipe off हो चुका है. सारे नेगेटिव मेमोरीज को तुमने अपने दिमाग से डिलीट कर दिया है. सारे पॉजिटिव मेमोरीज को तुम रिलिश और चेरिश कर पा रहे हो. इस मैजिकल मोमेंट ऑफ मैग्निफिसेंट मेमोरी को हमेशा अपने दिलो दिमाग में कैद करके रखो. ऐसे एक्सेलेंट एनलाइटनिंग एग्जाम्पलरी एक्सपीरियंसेस ज्यादा होते नहीं. You are now fully independent from the shackles, barriers and bondages of negativity. नेगेटिविटी के पिंजरे से उस आजादी को महसूस करो, उस फ्रीडम को एंजॉय करो. You are flying like a free bird in the limitless sky of precious positivity. अपने आसपास के उस सकारात्मक ऊर्जा, उस पॉजिटिव ऑरा को महसूस करो. You are in the highest elevated state of yours. Feel the connection between your body, mind and soul, soul, mind and body. अंदर का सब रिपेयरिंग अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है. Now in this empowered state, let's take 30 seconds to pray for the safety and well-being of this wonderful world. इस दुनिया में नेगेटिविटी की कोई कमी नहीं है, पर अभी तुम्हारे शेर दिल फौलादी सीने में पॉजिटिविटी की भी कोई कमी नहीं है. इस दुनिया में कहीं ओमिक्रॉन है तो कहीं तो लोग सीधा जंग करने पर उतर आए हैं. कहीं कुछ तो कहीं कुछ. Let's take 30 seconds to pray for this wonderful world and heal this universe with your power of positivity. So for next 30 seconds, without my voiceover, just be with yourself. Enjoy the company of yourself. Pray for this world and count for your blessings. So now, gently open your eyes.
धीरे से और हल्के से अपनी आंखें खोलो. You are now ready to start a joyful journey from the eternal world to the external world, to the real world, to the physical world, to the material world. And you are ready to start today's delightful day with an active and an alert mind. So just normal down, cool down, settle down, and gently open your eyes. So now I would like to unmute, I would like to ask anybody to unmute and share his or her experience, that how did you feel during this last 10 minutes of meditation? Sir, it felt so nice, so motivated, and so positive. It was such a great thing. I was actually in need of this thing like a very long time. Thank you so much, sir. Yes, anybody else would like to share anything else? I'm like speechless. It was very calming. Like calming is the Yes, only word that comes. yes, yes. So Abhishek Saab, Yes, sir. So you know it. यादें ताजा हो गई? Yes, sir. Yes, nice. अच्छा हो गया, लेकिन you should thank, everybody should thank Abhishek for getting me here also and for this meditation also. Sir, my pleasure. Yes, भावुक हो गया बेचारा बच्चा, भावुक हो गया. बोला क्या बोलूं अभी, मैं समझ में नहीं आ रहा मेरे को. So you always made me speechless. You know well. Yes, yes. Okay, so I hope कि सब लोगों का experience with respect to Guys, meditation was nice. platform is open for you. You can say. सर जब पहली बार अभिषेक ने मतलब हमें बताया ना वेबिनार वाला, तो ऐसा लगा था कि मतलब अभी ठीक है, हाँ होते ही रहते तो ठीक है, ये भी नॉर्मल सा होगा. पर फिर इसने आपके बारे में मतलब वो भेजा पूरा, तो हमें था एक बार पढ़ के वो हो गया कि अरे वो मतलब ऐसे भी पर्सनालिटी है मतलब इंडिया में और मतलब हमारे सराउंडिंग्स में. तो इसलिए एकदम सब एक्साइटेड हो गए थे. हम सब ने फुल मेहनत किया कि नहीं ये वेबिनार तो सक्सेस होना ही चाहिए. हाँ, और आपने कर भी दिया वो. थैंक यू सर. Okay, yes. एक्चुअली मेरे को बहुत सारे मैसेजेस भी आए थे कि संडे को वेबिनार है, बिकॉज तो बहुत सारे लोगों को रिकॉर्डिंग चाहिए थी. हाँ. ऑलमोस्ट 20 ही है, बट ऑलमोस्ट मेरे को बहुत सारे मैसेज आए थे कि कैन यू प्लीज शिफ्ट द वेबिनार, बट इट वाज ये हाँ वही. सो वो लेकिन फिर आज का हो गया और अच्छा हो गया, मतलब अर्लियर द बेटर उसे. यस सर. Yes, so अभी उनको वैसे भी रिकॉर्डिंग तो शेयर करना रहेगा ना, यस तो सर. रिकॉर्डिंग शेयर करोगे ना? यस सर, यूट्यूब में रहेगा. यस, मेरे को भी शेयर करना. यस सर, श्योर. यस. Thank you so much, CA Rushabh Kapasi, for coming on board with Research Cell and HR College for this session. I would like to thank our chairperson Abhishek Gupta for reaching out to you and bringing you on board for this session. Our whole research cell team, Dhwani, Sahil, Shubham, like we have all worked hard to get this session on. And especially thanks for the support of our professor in charge, Dr. Geeta Nair. Thank you so much, ma'am. And thank you to the whole audience for coming on board for this session. And I will now to share it to Dhwani to give a small thank you speech. Respected Principal Dr. Pooja Ramchandani and Professor Geeta Nair and all the teachers present for the event and my dear friends. It is my privilege to propose a vote of thanks today. I, Dhwani Savla, Vice President of the Research Cell of HR College, on behalf of the entire club, extend a heartfelt thanks to all those who have helped us in making this seminar a success. I would like to thank our speaker, CA Rushabh Kapasi, for making an excellent and topical presentation. I would also like to thank you, Pooja ma'am, for sparing her valuable time to address our program. I'd also like to thank our coordinator, Professor Geeta Nair, for her guidance and moral support.
The event coordinators have put in a lot of effort for making the seminar a success. I would also like to appreciate the volunteers and members of the research cell who have supported them. Lastly, I thank the wonderful participants from our college who formed the heart of the event. Thank you for the cooperation. Have a great day. Thank you, Dhwani. Now I request Geeta ma'am to say a few words and let's conclude this session. Hello, Geeta ma'am. Sorry, I was on mute. Sorry. Okay, thank you, Abhishek, for organizing such a wonderful session. Mr. Kapasi, thank you for that mesmerizing experience that we all had this past 1.5 hours on a lazy Sunday morning, which you really made enlightening with your life experiences. This needed in a living pre-COVID era. No physical interaction with students, and this was the best way to reach out to our youth, which often in distress or in depression. Times when there are no lectures on campus, they don't meet their friends, they don't see their teachers. It was an excellent opportunity to connect with our students, and I'm that Mr. Gem, and the experience that you shared brought me back to my college days when we had a special the visually impaired Ma'am, there's a little disturbance. हाँ, उनका वॉइस नेटवर्क लैग की वजह से आई गेस शायद क्रैक हो रहा है. Okay. I said it takes me back to my own college days at St. Xavier's College, where we had a special cell and a special room for visually challenged students, and each one of us would go and spend time with them, read them stories and articles, and reconnect with their world. So here it was great that Mr. with his world through his beautiful eyes of a very beautiful person that he is. Please do keep it our students and talk as long as you can. Thank you very much. The entire audience and the research cell, wonderful job. Thank you so much. So I would also like to basically keep in touch for future opportunities for future interactions with HR college students, and it would be a prestigious privilege, and it was in fact my fantabulous fortune, a beautiful bliss, and a prestigious privilege to be in on this proud platform. Thank you, sir. We'll definitely have one offline in our college. यस वन नहीं रहे, आगे आगे और बहुत ज्यादा मिलने का अपने Yes, को, मतलब बाकी के यूथ को अभी तो गेट टुगेदर रखेंगे साथ में. और yes, sir, we'll have one get together too. Yes. So participants excited to meet him? Sure. For sure. वो लोग तो याद भी नहीं रखेंगे, वो लोग बोलेंगे कि संडे खराब किया हमारा, वो लोग याद नहीं रखेंगे हमें. No, sir. नहीं सर, संडे अच्छा कर दिया इस बार आपने. So वैसे मैंने कांटेक्ट नंबर शेयर कर दिया है, तुम लोगों को चैट पे मिल गया रहेगा. कोई भी जिसको भी कोई भी हो फ्रीली कनेक्ट कर सकता है व्हाट्सएप पे, कॉल पे एटसेट्रा. ओके, आई विल ऑल्सो बी शेयरिंग माई लिंक्डइन और इंस्टा वाला आईडी एंड वो सब भी, वो अभिषेक वैसा फिर बाद में उसके बाद वो भी वहां पे. I'll share everything in the group. Yes. So can you please switch on your camera for 1 minute? So we'll take a हाँ. group Okay, photo okay. and then we'll. Yes. 1 minute. Participants are requested to turn on their cameras. Everyone, smile everyone, please.
Yes. So thank you so much for enlightening us. इनफैक्ट शुक्रिया तो मैं अदा करना चाहिए बिकॉज कैसे आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड एंड मतलब बोलते हैं ना ज्यादा ही एनर्जेटिक व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग विद इंटरेक्टिंग विद यू एंड आज का तुम लोगों ने मेरा संडे मतलब और एकदम संडे स्पार्कलिंग बना दिया so I would wish all of you all the best and may God bless you and again countless twinkling thank yous from the depth of my soul from the bottom of my heart and from the core of my mind for glorifying me with this glowing gift of this outstanding opportunity. Thank you so much, sir. So Thank you. thank you, sir. Chalo, enjoy life and tada bye bye. Yes, sir. Bye. Bye. Bye, Take sir. care, everyone. Thank you, sir. Bye. Bye.